اب وقت آ چکا ہے اس لمحے کا جب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ملکی سیاست کے اندر کیا ہو رہا ہے ملکی سیاست میں۔ اب آ چکا ہے وہ لمحہ جو روز آتا ہے، جو ہر پروگرام میں آتا ہے، ہر نیوز چینل جو آتا ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس چکر میں پاکستان میں اتنے نیوز چینلز ہو گئے، لوگ خبریں بہت سنتے ہیں اور خبریں لوگ سنتے ہیں پالیٹکس کی، نیوز انتھوزیسٹ ہیں ہم لوگ۔ آج ہم نے ویسے کل ہم نے ایم کیو ایم کا موقع بھی اس سے پہلے لیا تھا، پھر پی ٹی آئی کا بھی لیا تھا۔ آج ہم نے کہا ذرا نون لیگ سے موقف لے لے موجودہ سیاسی صورتحال پہ، لیکن کچھ بیک گراؤنڈ بتانا ضروری ہے۔ پولیٹیکل گہما گہمی ہے، آپ کو پتا ہے، ایک بار پھر عروج پہ ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم ہوئی اور اس کے بعد پھر 27ویں کی باتیں باز گشت رہی مسلسل۔ پھر لاسٹ ٹائم جب ہم نے فاروق ستار بھائی سے بات کی اپنے ہی شو کے اندر، تو عائشہ انہوں نے آ کے باقاعدہ ڈیولوشن آف پاور کے حوالے سے، اچھا ان کی تجاویز اچھی تھی، اٹس ناٹ اباؤٹ 27ویں آئینی ترمیم، لیکن انہوں نے کہا کہ جو بنیادی حکومتیں ہیں، بلدیاتی حکومتیں ہیں، وہ بااختیار ہونی چاہیے اور انہیں وفاق براہ راست فنڈ کرے۔ ویسے آپ کو لگتا ہے کہ اس مرتبہ مان لی جائے گی اگر ڈیولوشن آف پاور 26ویں ترمیم کے اندر ہی کیا جا سکتا ہے؟ I'm not sure کہ انہوں نے پہلے کوئی ایسا ریٹرن ایگریمنٹ کیا ہے یا ان کو طاقتور حلقوں کی حمایت حاصل ہے اس کے لیے، اگر تو ہے تو یہ ترمیم تو اچھی ہے، کیونکہ نیچے سطح پہ جب حکومتیں کام کریں گی تو ترقی ہوگی۔ بہرحال اس وقت زیر گردش ہیں اس آئینی ترمیم کی خبریں، جو انفارمیشن منسٹر انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، متضاد بیانات ہیں۔ دوسری طرف کچھ سیاستدانوں نے عوامی فورمز پر اس ترمیم کی حمایت کے بدلے بھی کچھ وعدوں کا ذکر کیا ہے، سو اسی حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے۔ بالکل فاروق ستار صاحب کی جیسے ہم نے بات کی، آج ہی میں پڑھ رہی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، وہ دوبارہ سے 26ویں ترمیم کروانے کے بعد نا انہوں نے اپنا موقف واپس اس پر آ گیا اپوزیشن والی سائڈ پر۔ کہتے ہیں کہ حکومت نے نا 11 جو بندے تھے ان کو خرید لیا تھا، اچھا یہ انہوں نے کہہ دیا ہے۔ اب پتہ نہیں اب عوام، مجھے ایسا لگتا ہے یہ انہوں نے غصے میں کہا کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو انٹرویو دیا تھا نا، عوام کے ماتھے پہ فے لکھا ہوا ہے فارغ ایسے بار بار کہتے ہیں۔ اچھا آپ دیکھا میں نے تھوڑا چینج کیا اس کو، بالکل ایسے ہی ہے، لیکن بلاول نے آپ کو یاد ہے یہ کہا تھا کہ اب ہمیں 27ویں ترمیم اگر کروانی پڑی تو ہمیں مولانا کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مجھے لگتا ہے مولانا غصہ کھا گیا۔ بہرحال اس ساری سچویشن کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سید کوثر کاظمی صاحب۔ کوثر کاظمی صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ 26ویں آئینی ترمیم ہو چکی ہے، اب بات ہو رہی ہے 27ویں آئینی ترمیم کی، لیکن حکومت بار بار اس کی تردید کر رہی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ اگر کوئی ترمیم نہیں ہے زیر غور تو اتنی قیاس آرائیاں، اتنی اسپیکولیشنز کیوں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں، ایک تو پارلیمان کا استحقاق ہے، قانون جو وقت کے ساتھ ساتھ جب ضرورت پڑتی ہے تو پوری دنیا میں ہم نے یہ دیکھا کہ ان چیزوں میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ پی ایم ایل این کے بڑے واضح موقف آپ نے دیکھا، نہ صرف عطا تارڑ بلکہ دیگر جو ہمارے سینئرز ہیں انہوں نے بھی کھل کے اس بات کا اظہار کیا کہ نہ کوئی اس حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، نہ ہمارا کوئی ارادہ ہے۔ البتہ پیپلز پارٹی کی طرف سے آپ نے سنا، بارہا انہوں نے اس بات کا اظہار کیا اور کر رہے ہیں کہ کیونکہ بہت زیادہ دباؤ ہے عدالتوں کے اوپر اور ججوں کی تعداد بڑھائی جائے۔ دیکھیں وہ ہمارے اتحادی ہیں، منشور ہمارا اپنا ہے، وعدے انہوں نے بھی عوام سے کیے ہوئے ہیں اور ہر پارٹی کا یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی وعدے وہ کر کے آئے ہیں، چاہے وہ سپیڈی جسٹس ہو، چاہے عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے ہوں، ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم ہر حال میں اپنے وہ وعدے پورے کریں۔ تو اگر پیپلز پارٹی اس حوالے سے سوچ رہی ہے تو ابھی تک انہوں نے پی ایم ایل این سے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ بلاول کی جو ملاقات ہوئی ہے، آج سے پہلے بھی وہ لاہور جا کے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز صاحب سے ملتے رہے ہیں، اسلام آباد میں بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں۔ ہمارے 1000 چیزیں ایسی ہیں جو توجہ طلب بھی ہیں، جن پہ تبادلہ خیال کی بھی ضرورت ہے۔ ایک اندازہ لگا کے بات کرنا کیونکہ رواج بن چکا ہے، ہمارے بے شمار یوٹیوبرز ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، کیونکہ بکتی ہیں چیزیں اور جھوٹ بڑے زور سے بکتا ہے پاکستان کے اندر۔ تو میں وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ والے کہیں سے کہیں بڑھ گئے اور میں تھا کہ سچ بولتا رہ گیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، سچائی لوگ سننا نہیں چاہتے کیونکہ اس سے صاحب اسی کا ایک شعر ہے کہ وہ میرے سامنے ہی گیا اور میں راستے کی طرح دیکھتا رہ گیا۔ شاید شعر آپ نے یاد کیا۔ خیر یوٹیوبرز کی بات بھی چلیں کچھ حد تک مان بھی سکتے ہیں، لیکن لاسٹ ویک فاروق ستار بھائی آئے، سینئر رہنما ہیں ایم کیو ایم کے، انہوں نے بھی یہ بات کی کہ ہمارے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی گئی ہے، ترمیم کا وعدہ ہوا ہے اور یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ یہ کی جائے گی، اور جو خاص طور پہ لوکل گورنمنٹس کے حوالے سے ہے، ڈیولوشن آف پاور کے حوالے سے ہے، اس پہ عمل کیا جائے گا۔ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایک مہینہ تک جب ہم کوشش کرتے رہے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے، مولانا سے آپ نے دیکھا کہ بارہا انکلوڈنگ تحریک انتشار ہر بندہ جا کے ملا ان سے، تو ان ملاقاتوں میں بھی 27ویں ترمیم کے حوالے سے یا پھر 28ویں اور 29ویں باتیں تو بہت ہوئی ہیں۔ باتیں تو عدالتی نظام انصاف کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا
साकिब निसार जैसी अदालतें थी, उससे पहले इफ्तिखार चौधरी साहब जैसी अदालतें थी जो कि पूरी हुकूमती मशीनरी को अपने कमरे अदालत में बुला लेती थी। फिर आपने देखा साकिब निसार साहब अपना असल काम छोड़ के, जो कि हजारों की तादाद में पेंडिंग केसेस थे, उनको शौक था पिंडी की गलियों में तहरीक इंतशार की इलेक्शन मुहिम चलाएं। उस वक्त शेख रशीद साहब के साथ मिलके बैरून मुल्क जाएं और वहां पे डैम के नाम पे फंड रेजिंग करें, जिसका आता पता ही नहीं है, पता नहीं क्या कहाँ जाता रहे। फिर उसके बाद आसिफ सईद खोसा साहब जैसे अदालती निजाम था जो कि धरने से इमरान खान को बुला के एक चलती हुई हुकूमत को 2017 का हवाला तो बड़ा जबरदस्त बनता है। उस वक्त मुल्क में तरक्की की रफ्तार आसमानों को छू रही थी। एशियाई खुर्दनोश की कीमतें क्या थी, सब्जियां किस कीमत मिल रही थी, डॉलर की कीमत क्या थी, पेट्रोल डीजल की कीमत क्या थी, चाइनीज सी पैक आ रहा था और बेशुमार मंसूबे मियां नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान में चल रहे थे। उस चलते निजाम को रोका गया। ठीक है। अच्छा कौसर साहब, अभी ये दोबारा से 26वीं तरमीम जो है ना उसकी बात कर लेते हैं कि अब पीटीआई और कुछ वकला तंजीमें जो हैं वो ये कह रही हैं कि हम मुल्कगीर एहतजाज करेंगे, लेकिन अभी तक हमने देखा कोई वाज़ेह स्ट्रैटेजी उनकी जो है सामने नहीं आई है। आपको लगता है कोई एहतजाजी तहरीक शुरू हो सकती है इस आईनी तरमीम के खिलाफ? देखें, एहतजाज एक जमहूरी हक है, चाहे वो बाहर करें, बेंच करें या आवाम करें, इसमें कोई वो हमारी तरफ से कोई कदगन ना है ना होना चाहिए। जहां तक आपने कहा जी कि बार के लोगों ने एहतजाज की कॉल दी, उसी तरह चाहे वो सिंध बार हो, पंजाब बार हो, तो बेशुमार ऐसी बार्स हैं जिन्होंने इसके हक में बात की और तायीद की 26वीं तरमीम की। तो ये दोनों राय सामने हैं। तो एहतजाज अगर वो करेंगे तो उनका हक है जी। अगर उनके पास कोई ऐसी चीजें हैं, मौक़िफ़ है, वो समझते हैं कि ये गलत हुआ है, हमने ये गलत किया है कि ये एक वन मैन शो होता था, कान से पकड़ के वज़ीर आज़म को घर भेज दिया जाता था, एक शख्स जो है वो बाइख्तियार होता था, वो यूं करके वो इशारे करता था कि मेरे लिए तो कोई मसला ही नहीं है, 4-5 MPs MNA से तो मैं यूं इस्तीफा दिला दूं। अगर वो चाहते हैं कि उस तरह का निज़ाम इंसाफ आ जाए, फिर ये उनको कबूल नहीं है तो वो जरूर एहतजाज करें, लेकिन एक आइन का हिस्सा है, आइन पाकिस्तान है, अगर वो इसके खिलाफ जाएंगे तो एक प्रोसीजर नहीं जाना चाहिए। वकला तो खास तौर पे आइन के ज़्यादा पासदारी करते हैं, कानून को पढ़े होते हैं, कानून के तालिब इल्म में। खैर उनका फैसला भी है, एहतजाज भी उनका बुनियादी हक है। खैर ख्वाजा आसिफ साहब ने, थोड़ा सा मैं पॉलिटिक्स की तरफ आता हूँ। बुशरा बीबी की रिहाई हुई, सॉर्ट ऑफ असाई ऑफ रिलीफ पीटीआई हमने देखा, लेकिन ख्वाजा साहब का एक रीसेंट स्टेटमेंट है जिसमें कहते हैं कि नूरा कुश्ती चल रही है, तो रिलीफ की वजह से कुछ रिलीफ मिला है बुशरा बीबी को, हाँ माफी तलाफी हुई है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ज़मीर तो जागे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। आपने देखा कि जिस तरीके से जो आज़ाद लोग थे, मैं उनको पीटीआई का तो नहीं कहूंगा ना, वो हैं, जिस तरह मुबारक ज़ेब हैं, पूरा उनका इलाका जानता है, पूरा पाकिस्तान जानता है कि किस तरीके से उनके भाई का नाहक कत्ल हुआ, और उसके बाद उस शख्स में जिस पे बौतान या इल्ज़ाम जो भी था, हमें तो उसका मेरे पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, उस शख्स को तहरीक इंसाफ की जानिब से टिकट दिया गया और मुबारक ज़ेब उसके मुकाबले में खड़े हुए और उन्होंने वो इलेक्शन जीता, और इलेक्शन जीत कर उन्होंने 26वीं तरमीम में हुकूमत का साथ दिया। तो पीटीआई क्लेम कर रही है कि वो भी उनका बंदा है, वो भी पीटीआई का और इमरान खान के नाम पे वोट लेके आया। तो ये इस तरह की चीजें थी जी, जो एक सिलसिला बन रहा था। आप देखें, अंदाजे भी होते हैं। पंजाब में राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं जी कि किसी किस्म की कोई डील की जो बातें हैं वो तो हमसे होनी है, हमें तो इस हवाले से कुछ पता नहीं। उस तरफ से ख्वाजा साहब का एक ट्वीट आ रहा है, उसमें वो इजहार कर रहे हैं, शायद उन्होंने अंदाजा लगाया हो कि किस तरीके से अवाम को भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट करके केपीके के तमाम हुकूमती वसाइल को इस्तेमाल करके वफाक पे और पंजाब पे चढ़ाई की जा रही थी। अली अमीन गंडापुर आते हैं, कभी वो अवाम को आगे धकेल के डी चौक का लारा लगा के खुद बुरहान से होते हुए पत्थरगढ़ एक गांव है वहां से निकल के वो वापस चले जाते हैं। फिर उसके बाद डी चौक का फिर अवाम को कह के लोगों के बच्चों को रियासती इदारों के सामने झोंक के फिर वापस चले जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये शक व शबात तो डालती हैं, उसके बाद वो घंटों गायब हो जाते हैं, किसी को नहीं पता। बल्कि उनके जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो भी ये देखते हैं कि अली अमीन गंडापुर सलमानी टोपी पहनी है, उन्होंने नजर ही नहीं आते, एहतजाज में आते हैं, वहां से निकलते हैं और फिर घंटों उनका पता नहीं चलता, और उसके बाद वो 12 जिलों का कह के ठीक है आपका मौक़िफ़ आ गया। कौसर साहब ये बताइए, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पहले लंदन गए और अब खबरें आ रही है कि वो लंदन से अमेरिका चले गए हैं। एक तो आने वाला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, अमेरिकी इंतखाबात होने वाले हैं। खैरियत से गए हैं नवाज शरीफ साहब? कोई मुलाकात करनी है उन्होंने या कोई उनका ये प्राइवेट दौरा है?
देखें जी, मियां नवाज शरीफ एक खालिस्तान जो उनका ट्रीटमेंट था ओपन हार्ट सर्जरी के बाद, वो बरतानिया और अमेरिका दोनों ममालिक के अंदर उनके डॉक्टर्स भी हैं। एक बड़े जेल के बाद जब वो गए थे, इन्होंने तो मजाक बनाया था, खैर मजाक तो इन्होंने उस खातून का भी बनाया था जिसने इनको मर के यकीन दिलाया कि वो बीमार थी। आपके सामने ये चीजें किस तरीके से तज़दीक का निशाना बनाया गया जब एहलिया मियां नवाज शरीफ की बेगम कुलसूम नवाज बिस्तरे मर्ग पे थी, तो उन्होंने मजाक बनाया हुआ था कि जनाब ये फैमिली के लोग जब अंदर जाते हैं तो वो उनके साथ बैठ के खाना खाती है। एक लंबा अरसा इस बात पे वो इल्जाम लगाए गए और उसके बाद फिर एक और चीज सामने आई, नहीं जी वो तो उनकी डेथ हो चुकी है और उनको वेंटिलेटर पे रखा गया है, इलेक्शन के करीब उनको जो है उनकी खबर आएगी मौत की और इलेक्शन में आवाम की हमदर्दियां ली जाएंगी। ये सारे वो बोतान और इल्जामात साबित हुए। अच्छा, एक सच्चा साबित। कौसर भाई वो रवैया अगर उस वक्त था ना, अगर उस वक्त था नवाज शरीफ साहब के साथ जेल के अंदर सियासी कैदी थे, गलत था, उस वक्त वो कंडेमेबल था, और अब जिस रवैये की शिकायत तहरीक इंसाफ कर रही है ना कि वो खान साहब के साथ हो रहा है, वो भी गलत है। अगर ये ऐसा है, उन्होंने कहा कि उनको गंडापुर की एक स्टेटमेंट सामने आई है कि जो वफाकी और पंजाब हुकूमत है उसने बानी पीटीआई के साथ एक बदतरीन रवैया इख्तियार किया हुआ है और उनके साथ सही सलूक नहीं करी है, बुनियादी इंसानी हुकूक उनके, और ये रवैया भी तो गलत है ना। वो कह रहे हैं कि मैं जो है ना पूरा मुल्क बंद कर देंगे अगर इस तरह की दोबारा से शिकायत आती है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, वो अवाम को जरूर कॉल लें एहतजाज की। उनकी जो केपीके की अवाम है, क्योंकि पंजाब से तो कोई निकलता नहीं, ना लाहौर से निकलेगा, ना पिंडी से निकलेगा, ना दीगर शहरों से निकलेगा, कोई बंदे उनके साथ आएंगे केपी से। मेरी उस अवाम से दस बदस्ता गुजारिश है कि अली अमीन गंडापुर जो उनके वजीर आला है ना जी केपी के, उनको बांध के लेके आए साथ, क्योंकि अगर वो बांध के लेके ना आए ना, उन्होंने फिर रास्ते से वापस चले जाना है, उन पे शेलिंग होनी है, क्योंकि हम चढ़ाई की इजाजत तो देंगे नहीं। हम जी राब्ता मुनक़ता हुआ। ठीक, अच्छा कौसर साहब, आखिर में ये बता दीजिएगा कि हुकूमत बार बार ये बात कर रही है कि महंगाई में कमी हुई है, इस हवाले से अदादो शुमार भी पेश कर रही है, लेकिन अवाम जो है वो महंगाई से तंग है। अवाम को क्यों नहीं रिलीफ महसूस हो रहा? कहीं खामियां रह गई हैं? देखें, कंपैरिजन कर लें आप, आज से 6 महीने पहले आप एशियाए जरूरिया जो हैं उनकी कीमतों का और आज आप उनका मुवाजना कर लें। आप खुद निकलें जरा, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर चले जाएं, किसी सब्जी वाले के पास, किसी फ्रूट वाले के पास, किसी तंदूर वाले के पास, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कीमतों में किस कदर कमी हुई है। आलमी सतह पे ये कहा जा रहा है कि जो महंगाई के इशारे हैं उनमें कमी हुई है। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तारीख की बुलंद तरीन जो है वो जो सतह है वो बुलंद हुई है, तो इसमें तो दूसरी राय नहीं है। मसला भी ये है, ये तहरीक इंतशार क्योंकि सोशल मीडिया पे ये मजबूत हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि एक अकाउंट को 12-12 लोग 11-11 लोग चला रहे हैं और हजारों की तादाद में उन अकाउंट का वो मामला है। फवाद चौधरी साहब ने बड़ा खुल के कहा है कि हमारे पीटीआई के अक्सर अकाउंट्स जो हैं वो जो बैरूनी हैंडलर है वो चला रहे हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं है यार कि झूठ को फैला सकते हैं। अवाम में अनारगी, अवाम में मायूसी फैलाना इनका काम है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल आप अगर ग्राउंड में निकलें तो आपको पता चलेगा। मैं पंजाब का हवाला यहाँ पे जरूर दूंगा आपको। ये क्यों मरियम नवाज पे तनकीद करते हैं? अच्छा, एक जो आपका शुक्रिया, टाइम भी खत्म हो गया, लेकिन एक जो पॉइंट आपने कहा ना कि कीमतें कम हुई हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि पिछले 2.5 साल में जितना मैसिव राइज हुआ है ना, उस राइज पे कुछ हद तक कंट्रोल हुआ है, वो राइज होना बंद हुई है कीमतें, यानी उस तरीके से चीज़ें बढ़ नहीं रही हैं। लेकिन एज फार एज द परचेजिंग पावर इज कंसर्न, तो अभी बहुत बड़ा गैप मौजूद है कि लोगों की परचेजिंग पावर कितनी है और चीज़ों की प्राइसेस कितनी है। तो इसमें आप इतना क्रेडिट जरूर ले सकते हैं कि महंगाई उतनी नहीं हो रही, लेकिन क्या सस्ती हो रही है चीज़ें? हाँ, सस्ता नहीं कह सकते, बढ़ना कम हो चुका है। इंटरेस्टिंगली ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि फवाद चौधरी साहब से मुस्लिम लीग नून के कोई रहनुमा जो है ना वो इत्तेफाक करेंगे, मुस्लिम लीग नून के कोई रहनुमा इत्तेफाक करेंगे, क्योंकि फवाद चौधरी चौधरी मुस्लिम लीग नून, इट वाज सरप्राइजिंग एंड यस, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, और देखते हैं और क्या क्या होता है। अपडेट हमने कर दी है आपको कि इस वक्त क्या सिचुएशन है मुल्क में सियासत के हवाले से।